Vishwavidyalaya. As you are aware, among the many career choices that a student may have, entrepreneurship is emerging as a strong option today. Efforts are being made by the government to provide a conducive environment of innovation and startups, and the education institutions are gearing up to provide academic mentorship that is required to foster the spirit of innovation and entrepreneurship among the students. According to the data provided by the Economic Survey of India for the year 2021, as of December 2020, the government has recognized 41,061 startups so far, and out of these startups, more than 39,000 have reported 4 lakh 70,000 jobs. Indeed, entrepreneurship in India has grown significantly, and startups are beginning to dramatically impact the economy. Even the corporate sector has realized the importance of startups and are partnering or investing in them. With all these developments taking place, a shift is likely to take place in the mindset which would like to explore entrepreneurship as a career option. To know more about why should you consider choosing entrepreneurship as your career option, we have brought to you today's topic, आओ उद्यमी बने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ. And to discuss this, we have with us an eminent expert, Professor Virendranath Grover. Professor Grover is a IIT Kanpur alumnus. In his long career, spanning almost 50 years, he has served the corporate and the government sector in various capacities. He taught as a professor and was the head of the Department of Training at the Indraprastha Engineering College, Ghaziabad. He is the founder secretary of Ispat Bharti Foundation. His areas of interest lie in career counseling, skill and entrepreneurship development, and writing. He has written books and published articles in reputed publications. He founded the Vivekanand Samiti in IIT Kanpur in 1967 and the Ghaziabad Management Association in 1982. He is a life member of the Institution of Engineers, Indian Institution of Metals, and Laghu Udyog Bharati, which is All India Association of Small Scale Industry. He is also a member of the advisory committee of the Indian History Awareness Research Society. I, on behalf of NCID IGNOU, welcome you, Professor Grover, to today's session. Thank you. Thank you very much. We also have with us Dr. O.P. Sharma, Director, National Center for Innovation in Distance Education, IGNOU, with us today. Before I invite Professor Grover to deliver his talk, I would request Dr. Sharma to say a few words, please. Dr. Sharma. Thank you, Dr. Momita Das, and good morning to all of you. I welcome you all for this live session on Facebook and YouTube. This is the 11th session in the series, and we have expert of the field, Professor Virendra Grover. I welcome you, Grover Sahab, and thank you very much for sparing time to share your experience and expertise with our students. As Dr. Momita has mentioned, this series we have started to create an awareness about the innovation, entrepreneurship, and startup among IGNOU students. And I would like to tell you the Indira Gandhi National Open University has a base of around 30 lakh students at the moment. And we think if some of them are interested and are motivated towards entrepreneurship and what you are going to talk about, Udyamshilta, then I think it will be a great contribution of the university for them. And we have organized several such sessions covering different topics, starting from innovation, entrepreneurship, startup, IPR issues, etc. And this series is going to continue for long. And this today's session, which you are going to take, आओ उद्यमी बने, what I think is going to be very interesting, क्योंकि आपका जो experience है, आपकी जो expertise है, और मैं देखता हूँ आपके साथ में जब भी आपकी जो मैगजीन आती है उद्योग संचेतना, आप ऐसे ऐसे इश्यूज को उसमें कवर करते हैं जो कि कोई भी पढ़ करके इंस्पायर होगा
इवन मैं देखता हूँ कि अगर कोई हाउस वाइफ हो, अगर कोई पढ़ भी नहीं रहा है, कोई स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल है, आउट ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, वो दे विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू डू, क्योंकि जिस तरीके से आप उनको प्रेजेंट करते हैं, उनकी कहानी को आप लेके आते हैं, कहाँ थे वो नथिंग से और एक बहुत ऊंचे लेवल तक उन्होंने अपनी जर्नी पूरी की है। तो उस तरीके का एक्सपीरियंस आपके साथ में, और खुद आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट के अलुमिनी रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के, जहाँ का अपना एक अपनी वैल्यू है, और आपने जो इंडस्ट्री के फील्ड में जितने सालों काम किया है, एंड आई थिंक योर एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड बोथ कंबाइंड टुगेदर विल हेल्प आवर स्टूडेंट्स के जो हम सीखते हैं किताबों में, जो हम सुनते हैं अपने टीचर से, उसको कैसे इंडस्ट्री में कन्वर्ट करें, कैसे उसको एंटरप्राइज में कन्वर्ट करें। और आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, पूरा स्टार्टअप को इतना सारा प्रमोट कर रही है, डॉक्टर मोमिता हैज प्रेजेंटेड द स्टेटस डेटा ऑफ द स्टार्टअप्स इन इंडिया, तो उसे बहुत इंस्पायरिंग डेटा है, और हमें लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अगर आगे आएंगे, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अगर वो उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने स्टार्टअप में, तो आई होप आपका जो आज का प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट। विद दैट नोट, विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई वुड लाइक टू welcome you once again, and welcome all the participating faculty members and staff of IGNOU through different media here as well on Facebook Live as well as on YouTube. Thank you very much, Dr. Momita. Now you can take it up further. Thank you, Dr. Sharma. Thank you very much, Thank you very much, Dr. Sharma. Now I would request our expert, Professor Virendranath Grover, to kindly deliver his talk. Professor Grover, please. Thank you, Momita Das. आओ उद्यमी बने, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम बनने चलते हैं तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। लेकिन पहला सवाल ये है कि हम उद्यमी क्यों बने, ऐसी क्या ज़रूरत है। अगर आप समाचार देखते हैं तो अक्सर खबरें आती हैं, लोग रोजगार के लिए प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं कि हमें जॉब दो। पर सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती, क्योंकि जॉब जो है वो लिमिटेड है, और हमारे पढ़े लिखे लोग, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ ये हमारा एक एडवांटेज है कि वी हैव ए यूथ, क्वालिफाइड यूथ, ऑन द अदर साइड वी हैव ए लिमिटेशन इन प्रोवाइडिंग जॉब्स, वेदर इन गवर्नमेंट और इन लार्ज कॉर्पोरेशंस। सो क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उद्यमी। बोलचाल की भाषा में उद्यमी उसे कहते हैं जो इंडस्ट्री चलाता है, लेकिन हिंदी में उद्यमी शब्द के कई अर्थ हैं, जिनमें से कुछ हैं कर्मठ, क्रियाशील, यत्नशील, उद्योगशील, परिश्रमी और मेहनती। इसका मतलब यह है कि जो परिश्रम करता है या मेहनत करता है वो उद्यमी है। अब हम अगले स्लाइड को देखें, अगर इसमें एक ठेला चलाने वाला या खेल की प्रैक्टिस करने वाला बहुत मेहनत करता है, बिना मेहनत के तो आगे बढ़ नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि हम खेत में, फैक्ट्री में, खेल के मैदान में मेहनत करते हैं, तो क्या सब उद्यमी हैं? परंतु लेट अस ब्रिंग ए डिफरेंस। द डिफरेंस हियर इज, उद्यमी यहाँ पर एक पेशा है, एक विकल्प है, ऑल्टरनेटिव है नौकरी का, क्योंकि आजकल सब नौकरी चाहते हैं। तो नौकरी का एक ऑल्टरनेटिव है जो बहुत फ्लेक्सिबल है, ये आजीविका के लिए है, इट इज फॉर अर्निंग, एंड ईच वन ऑफ अस शुड नो दिस आर्ट, बिकॉज उद्यमी बनना एक कला है और हम सबको ये कला आनी चाहिए। हाँ, अगर नौकरी मिलती हो, यू गो एंड ज्वाइन, no problem, but always keep a watch on opportunities
एंड जंप ऑन द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि आपको कभी भी बेरोजगार न रहना पड़े। तो निष्कर्ष यह निकला कि उद्यमिता या उद्यमी एक कैरियर है, एक आकर्षक पेशा है, एक सम्मानजनक संबोधन है, और उद्यमिता की सोच जरूरी है, मजबूरी नहीं। मजबूरी का मतलब ये है कि जब जॉब ना मिले तब हम सोचें चलो उद्यमी बनते हैं, इतना तब आसान नहीं होता है। हम लोगों को तैयारी पहले से करनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं तैयार हूँ, अगर मुझे तैरना आता है तो कभी भी अगर तैरने की जरूरत पड़े मैं कूद कर तैर सकता हूँ। ये नहीं कि जब मुसीबत आए तब मैं तैरना सीखूं। इसलिए उद्यमिता की सोच जरूरी है और वो हमें, हर व्यक्ति को ये कला सीखनी चाहिए। अब सवाल है रिस्क का। लोग रिस्क लेने से घबराते हैं, तो खतरा नौकरी में भी है। आजकल प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। सेना में खतरा है जिंदगी का, लेकिन लोग जाते हैं। और खतरा सड़क पर वाहन चलाने में भी तो है, तो क्या वाहन चलाना बंद कर देते हैं? तो आइए फिर कुछ चर्चा करते हैं उद्यमिता की। उद्योग संचेतना एक मासिक पत्रिका है ऑनलाइन, हर महीने। इसमें हम उद्योग का परिचय देते हैं। उद्देश्य ये है कि जब तक हमें उद्योग का परिचय नहीं होगा, न तो हम उद्यमी बन सकते हैं, न हम नौकरी के लिए ट्राई कर सकते हैं, न हम इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। और इसी में हमारा लक्ष्य जुड़ा हुआ है, कैरियर। तो हम कैरियर की बात उद्योग संचेतना के साथ इसको एक नया चैनल बनाने की सोच रहे हैं। आशा है उसमें हमें आपकी संस्था का सहयोग मिलेगा। अब कैरियर की बात करें तो कैरियर की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से कि कौन सा सब्जेक्ट चुने। बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर सोच ये होती है कि क्या पढ़ने से हमको ल्यूक्रेटिव जॉब मिलेगा, जहाँ ज़्यादा पैसा मिल सकता है। ये नहीं होता कि हमें उस विषय में इंटरेस्ट है कि नहीं। वी लुक फॉर द मनी एंड व्हाट आई विश टू बी इन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। ये हमें सोचना पड़ता है, मेरा सपना क्या है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, आईएएस बनना है, या आर्मी में जाना है। एक्टर, लीडर, टीचर, फार्मर, बिल्डर, बिजनेसमैन, बहुत सारे पेशे हैं, अनलिमिटेड। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हर कोई सोचता है कि सबसे अच्छे स्कूल में जाना है, सबसे नामी स्कूल में जाना है, जिसकी रेपुटेशन है। स्कूल अच्छा हो, कॉलेज अच्छा हो, यूनिवर्सिटी अच्छी हो, और अगर अपने देश में ना मिले, चलो अमेरिका चलते हैं, MIT में पढ़ेंगे, हार्वर्ड में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन जो अफोर्ड कर सकता है वो महंगे से महंगे विद्यालय में जाता है, नामी से नामी विद्यालय में जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इन विद्यालयों में नहीं जा पाते वो जीवन में आगे नहीं बढ़ते। अब जब हर कोई, अगर हम एक सर्वे करें तो मेरे को लगता है 99% लोग कहेंगे मुझे नौकरी चाहिए। उद्यमिता की कोई बात नहीं करता। और नौकरी भी कहाँ चाहिए? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में, बिग ब्रांड्स में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। संख्या बहुत है इनकी, और इनमें कुछ बहुत अच्छे हीरे भी हैं, लेकिन हमको उन्हें तलाश करना आना चाहिए। अब न तो हम SME की बात करते हैं कि नौकरी करेंगे तो SME में जाना नहीं चाहते। लोग पूछते हैं पैकेज क्या मिलेगा। और दूसरी तरफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमारे बिल्कुल पीछे चला जाता है, हम उसकी तरफ देखते ही नहीं। हमारी नज़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ जॉब पर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर, आत्मनिर्भर काम पर कोई नज़र नहीं है। अब एक बात को आप ध्यान रखें कि आवश्यक नहीं कि हम जो पढ़ते हैं वही पेशा अपनाएं। सवाल अवसर या मौका मिलने का है। जितने लोग शिक्षण संस्थानों से पढ़कर निकलते हैं उतनी नौकरियां नहीं हैं। ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए जब हम उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लेते हैं। और राजनीतिक दल कोई भी सत्ता में आ जाए, नौकरी की गारंटी नहीं दी जा सकती।
अब जॉब की बात करें, एमएनसी, पीएसयू, गवर्नमेंट, ये सब बात हम सोचते हैं, लेकिन इन सब में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। और दूसरा, थ्रेट्स भी देखने पड़ेंगे, खतरे क्या क्या हैं, क्योंकि जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ खतरे भी होते हैं। अब मान लीजिए टीचिंग एक प्रोफेशन है, जो किसी भी विषय का विद्यार्थी टीचर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। और डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, और अब पीएचडी भी कंपलसरी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या सबको जॉब मिल रहा है? नहीं मिल रहा। जॉब्स आर लिमिटेड। टीचिंग के जॉब हर एरिया में हैं, बट लिमिटेड हैं। तो फिर क्या करें? खाली बैठें? जी नहीं। कुछ लोग ट्यूशन करते हैं, कुछ म्यूजिक, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, निटिंग, राइटिंग, ब्लॉगिंग, गार्डनिंग, बहुत सारे काम हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कुछ हमारी हॉबीज होनी चाहिए, हमारे शौक होने चाहिए। हम अपने किसी शौक को बिजनेस बना सकते हैं, और कहते हैं अगर हॉबी को बिजनेस बनाया जाए तो व्यक्ति बहुत सफल होता है। तो यहाँ जरूरत महसूस होती है हॉबी की। जो लोग पढ़ते रहते हैं, उन्हें कुछ गेम्स भी खेलने चाहिए। कुछ दूसरी हॉबीज होती हैं, जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, इनमें भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। गार्डनिंग है, इसमें भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो सवाल इस बात का है, यहाँ पर एक ज़रूरत महसूस होती है हॉबीज़ की, और हॉबीज़ का बहुत बड़ा योगदान है हमारे कैरियर में। कैरियर का मतलब खास करके उद्यमिता में। कैरियर इज व्हाट वी डू। अब आप कहेंगे एजुकेशन का क्या फायदा? एजुकेशन इज फाउंडेशन। जिस तरह घर बनाते हैं तो पहले नींव बनती है, उसकी फाउंडेशन बनती है, उसे एजुकेशन कहते हैं। एंड कैरियर इज व्हाट वी डू ऑन लाइफ। उसके ऊपर जो आप निर्माण करते हैं, नींव के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर, वो आपका कैरियर है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत लोग भाग लेते हैं, बट ऑल डोंट गेट सक्सेस। इसी तरह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले सब इंजीनियर नहीं बनते। दूसरा, बीटेक की डिग्री इंजीनियरिंग नहीं, और ना ही इंजीनियरिंग एक कैरियर है। कैरियर क्या है? मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग के बाद अगर आप मार्केटिंग में चले गए तो यू आर ए मार्केटिंग मैन। अगर आप मेंटेनेंस में चले गए, यू आर ए थॉरो टेक्निकल प्रोफेशनल। अगर आप डिजाइन में चले गए, यू आर ए डिजाइन इंजीनियर। अगर आप रिसर्च में चले गए, यू आर ए R&D पर्सन। तो ये सब जो हैं, ये कैरियर आपके जो है इंजीनियरिंग कैरियर नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में आपने जो काम किए वो आपका कैरियर है। एक इंजीनियर जो है वो HR एक्सपर्ट भी बन सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बन सकता है। तो उसका कैरियर क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस तरह से कैरियर इज व्हाट वी डू, नॉट व्हाट वी स्टडी। नाउ देयर आर सिचुएशंस वी डोंट गेट जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर स्कूल और कॉलेज। बहुत होता है ऐसा। और सम पीपल लूज जॉब आफ्टर 15 to 20 years ऑफ सर्विस। बड़ी कॉमन बात है, कई कारण हो सकते हैं। इस तरह से कोविड-19 के महामारी में बहुत लोगों ने नौकरी खो दी, क्योंकि कंपनीज को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इनकम नहीं थी, उन्होंने लोगों को निकाल दिया। और नौकरी से निकालना डेवलप्ड कंट्रीज में बड़ी कॉमन बात है, बड़ी आम बात है। वहाँ इसको, यहाँ तो लोग सकुचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि मैं नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो ही नेवर फील्स बैड अबाउट इट। दूसरा, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पर अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर जैसे स्विट्जरलैंड है, तो वहाँ पर किसी को नौकरी से निकाला जाता है तो उसको 1 साल तक सैलरी मिलती रहती है, और सरकार मदद करती है किसी न किसी काम में एडजस्ट करने के लिए। अब सवाल उठता है कुछ और, हमें जानना जरूरी है अपने बारे में। तो यहाँ पर मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है SWOT एनालिसिस, SWOT। हर व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिन्हें हम स्ट्रेंथ कहते हैं, और हर किसी में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, जिसे वीकनेस कहते हैं। और अवसर तलाशने की कला हर एक को आनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज, अब किसी को अपॉर्चुनिटी ना मिले
तो क्या कर लेंगे आप? मान लीजिए मैंने डांस सीखा और मुझे या म्यूजिक सीखा, तो मुझे कहीं परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिलता अगर, तो क्या फायदा? अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिलती तो मेरी कला की वैल्यू नहीं है। दूसरा, थ्रेट, विपत्ति हर एरिया में है, व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। थ्रेट्स आर ऑलवेज देयर। तो हम लोगों को, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, स्ट्रेंथ्स को समझना, कमजोरियों को समझना, वीकनेसेस को समझना, अवसरों को तलाशना और उनका फायदा उठाना और थ्रेट्स का मुकाबला करना, ये कला हर व्यक्ति को आनी चाहिए, हर समाज को आनी चाहिए, हर देश को आनी चाहिए। तो अब अगर उद्यमी बनने का हम सोचते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें? पहली बात तो हमें अपॉर्चुनिटीज को तलाशना आना चाहिए, फिर हमें बिजनेस बेसिक्स पता होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी बात करूंगा आगे चलकर बेसिक्स का मतलब क्या है। दूसरा, अकेले बिजनेस नहीं किया जा सकता। अगर उद्यमी बनना है, बिजनेस करना है, तो हमें हमेशा एक पार्टनर चाहिए, एक नहीं 2-3 भी हो, अच्छी बात है, जो जिन पर हमारा भरोसा हो। और तीसरी बात है स्वॉट, जिसकी हमने अभी चर्चा की। स्वॉट से क्या होता है कि मेरे में कोई स्ट्रेंथ है और मेरे मित्र में, या मेरे में कोई वीकनेस है और मेरे मित्र में वो स्ट्रेंथ है, तो इसे कहते हैं 1 और 1 11। जब 2 व्यक्ति मिलते हैं आपस में, तो एक की स्ट्रेंथ और दूसरे की वीकनेस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, हम कोई भी व्यवसाय शुरू करें, हमें लगातार नवोन्मेष करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा। हम एक प्रोडक्ट पर टिक नहीं सकते। क्यों? आपने देखा होगा कि आजकल बहुत तेजी से बदलाव आते हैं मार्केट में। एक समय था लोग कैसेट लाते थे और कैसेट प्लेयर लाकर घर में पिक्चर देखते थे किराए पर। फिर सीडी मिलने लगी। अब न कैसेट, न कैसेट प्लेयर, न सीडी, आपको पिक्चरें हर समय उपलब्ध हैं ऑनलाइन। तो उन बिजनेस का क्या हुआ? जो कैसेट बनाते थे, जो कैसेट प्लेयर बनाते थे, जो सीडी बनाते थे, उनका धंधा चौपट हो गया। तो सवाल इस बात का है कि हर काम में परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम अपने काम में विविधता की बात सोचें। हमने और ऑल्टरनेटिव क्या करना है, क्या नहीं करना है। उदाहरण के लिए पिक्चर ट्यूब, कलर पिक्चर ट्यूब बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है। जब कलर टीवी चला तो पहले ग्लास के पिक्चर ट्यूब आती थी। अब एक कंपनी ने सारे काम उससे जुड़े करने शुरू कर दिए। ग्लास ट्यूब अपनी बनानी शुरू कर दी, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अपना शुरू कर दिया, हर काम उसी से जुड़ा करने लगे। और जब पिक्चर ट्यूब की मार्केट खत्म हुई, एलसीडी आ गया, दूसरे और स्क्रीन आ गए, तो उनका काम चौपट हो गया। मतलब ये है कि हमारे काम में थोड़ी वैरायटी हो अगर, अच्छा रहता है। उदाहरण के लिए मैं अगर कचौड़ी बनाता हूँ, मुझे साथ में कुछ और भी अगर बनाता रहूँगा, तो कभी अगर कचौड़ी की मांग कम होगी तो दूसरी चीज में आप जोर लगा सकता हूँ मैं। अब आता है अगला पक्ष, इंस्पिरेशन का। इतिहास हम पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ते हैं, किसने किससे लड़ाई की, कौन हारा कौन जीता, किसकी क्या बढ़ाई थी। लेकिन हम लोग अपने उद्यमी का इतिहास नहीं पढ़ते। इतिहास से हमें शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। अब एक 94 साल की महिला चंडीगढ़ में उद्यमी बन गई। क्यों बन गई, कैसे बन गई? वी शुड नो अबाउट इट। ये तो पुरानी बात इतिहास की नहीं है, ये तो करंट बात है। लक्ष्मण राव किर्लोस्कर, किर्लोस्कर उद्योग बहुत बड़ा आज मल्टीनेशनल कंपनी है देश की। लेकिन 1880 के आसपास, आज से 132-35 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी। कैसे हुई थी, क्या समस्याएं आई थी, क्या लक्ष्मण राव ने सोचा था उद्यमी बनूंगा? जमशेदजी टाटा, 1857 की बात है, जब देश में क्रांति हो रही थी। उस समय स्वदेशी का विरोध शुरू हो गया था, लेकिन स्वदेशी मिलना भी तो चाहिए। हम जब चाहते हैं कोई चीज का हम विरोध करें, स्वदेशी का बहिष्कार करें, तो स्वदेशी की प्रोडक्शन भी होनी चाहिए।
पार्कर पूल, एक विद्यार्थी जो हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ सका, उसकी इच्छा थी डॉक्टर बनने की, लेकिन उद्यमी बन गया। लार्सन एंड टूब्रो, लगता है विदेशी नाम है, लेकिन ये दो व्यक्ति डेनमार्क से भारत आए थे नौकरी करने के लिए, और मजबूरी नहीं, इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उद्यमी बन गए। और इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो लेट अस थिंक बिग। लक्ष्मणराव किर्लोस्कर डिजायर टू बी पेंटर, उसका शौक था पेंटर बनने का। जमशेदजी टाटा वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ प्रीस्ट, पुजारी, पारसी परिवार में पुजारी बनने का उनका पारिवारिक काम था। और आजकल अभी भी बहुत से लोग जो परिवार का पेशा होता है उसको अपना लेते हैं। पार्कर पूल डॉक्टर बनना चाहता था। लार्सन और टूब्रो जॉब के लिए भारत आए थे, बट दे ऑल बिकेम एंटरप्रेन्योर्स। दे आर इंस्पिरेशन टू ग्रूम ए माइंडसेट, वे ऑफ थिंकिंग। और दूसरी बात, एम्प्लॉयबिलिटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अक्सर आता है कि हमारे युवा जो ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बीए हो, एमबीए हो, बीबी हो, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत पुअर है। मतलब जॉब के एंगल से दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। डिग्री होना अलग बात है। तो जब हमारा माइंडसेट उद्यमी की तरफ जाता है, हमारी सोच उद्यमी बनने की ओर जाती है, तो हम कुछ ना कुछ एम्प्लॉयबिलिटी हमारी इम्प्रूव होती है। और फिर अगर हम नौकरी में भी जाएंगे, कहीं इंटरव्यू देने भी जाएंगे, तो वी आर मोर बेटर इक्विप्ड टू फेस इंटरव्यू। इसलिए हर व्यक्ति को उद्यमी बनने की दिमाग में सोच पैदा करनी चाहिए। चाहे हम बने ना बने अलग बात है, लेकिन एक विचार हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। और कभी मुसीबत आती है, नौकरी जाती है, तो उसका हम फायदा उठा सकते हैं। अब ये दो फोटो देखिए आप, ये दोनों भारतीय हैं। लक्ष्मणराव किर्लोस्कर 1869 से 1956, जमशेदजी टाटा, ये भी उसी के उनसे पहले के हैं। और इनके नाम पर तो आज बहुत बड़ा साम्राज्य है टाटा परिवार का। आप कोई भी वस्तु लो, टाटा के नाम से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है क्वालिटी का। लक्ष्मणराव की बात करें तो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। 3 साल की उम्र में माँ का देहांत हो गया। अब पिता ने 12 रुपए प्रतिमास की नौकरी से इन सबको बड़ा किया। कल्पना कीजिए, 1800 उस शताब्दी की आखिर की बात है, और ये दीवार पर कोयले और खड़िया से लकीरें खींचते थे। बहुत से बच्चे खींचते हैं, ये बात अलग है। आजकल के बच्चे जरा मॉडर्न हैं, तो उनको ये खड़िया और कोयले नहीं मिलते, क्योंकि वो लैपटॉप पर या मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने जिद की कि मुझे पेंटर बनना है। ये शौक बहुत कम लोगों को होता है। और मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिला। 2 साल करने के बाद मेडिकल जांच हुई, तो इनको पाया गया कि ये बस आंशिक कलर ब्लाइंड, मतलब पार्शियली कलर ब्लाइंड थे। और कलर ब्लाइंड होना जो है, चाहे वो आंशिक हो या फुल, इट इज डिफिकल्ट फॉर ए पेंटर टू बिकम ए गुड पेंटर, बिकॉज रंगों की पहचान नहीं होगी तो पेंटर कैसे बनेंगे। तो पेंटिंग छोड़कर इनको इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स करवा दिया गया, और फिर ये इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्राइंग टीचर बन गए। VJTI, विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, बम्बई में एक बहुत प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसका नाम आज बदल चुका है, लेकिन शॉर्ट में वही VJTI ही कहते हैं उसको। अब हर नौकरी में हमारे पास कुछ खाली समय होता है, जिसे हम लोग गपशप। जी सर, बिल्कुल है। इनके बारे में है कि ड्राइंग की क्लास करने के बाद इनके पास कुछ काम नहीं होता था। शादी तो हुई नहीं थी, अब खाली बैठे क्या करें, तो ये लाइब्रेरी में जाकर कुछ ना कुछ टेक्निकल जर्नल्स देखा करते थे। और इनको 3 जर्नल बहुत पसंद आए उस टाइम पर, इतने अच्छे लगे कि ये उनको छोड़ते नहीं थे। हर इशू उसका, हर अंक उसका पढ़ते थे। दूसरा, इंजीनियरिंग कॉलेज नया बना था, वहाँ वर्कशॉप लग रही थी। वर्कशॉप में मशीनें आ रही थी, मशीनरी खुलती थी, उनमें कैटलॉग निकलते थे। ये उनके ब्रोशर कैटलॉग पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद में उसका कैसे इंस्टॉलेशन किया जा रहा है ये सब समझते थे।
ये सारा काम सीख लिया। खाली बैठकर अगर लाइब्रेरी जाकर जर्नल पढ़ने शुरू कर दिए, वर्कशॉप में बैठकर बहुत से प्रैक्टिकल काम सीख लिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और ये सारी चीजें बाद में काम आती हैं, उस समय तुम सोचते नहीं है कि हम क्या क्यों कर रहे हैं ये काम। अगर हमें समय मिलता है, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, लाइब्रेरी जाना चाहिए, या कोई ऑल्टरनेटिव कला सीखनी चाहिए जो कभी काम आ सकती है। अब इन भाई साहब को मुंबई में पहली बार एक साइकिल चलाने वाला युवक मिला। इनकी उत्सुकता थी कि भाई ये क्या चीज़ है, कहाँ से खरीदी, कितने की खरीदी। उसने कहा ये इंग्लैंड से मंगाई गई है, आयातित है, और इसकी कीमत 700 से 1000 रुपये उन दिनों में थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1880 से पहले की। उस समय साइकिल की कीमत 700 से 1000 रुपये के आसपास होती थी। इन्होंने बेलगांव में अपने भाई को लिखा कि भाई 2 पहिए की गाड़ी है, अपने शहर में अगर बेच सकते हैं तो मंगा लें क्या। भाई ने कहा ठीक है। तो इन्होंने साइकिलें मंगानी शुरू कर दी और भाई को भेजने लगे मुंबई से बेलगांव, और बेलगांव में साइकिलों की दुकान शुरू हो गई। अब साइकिल उस जमाने में नया एक वाहन था। आज कार चलाने के लिए कार ड्राइविंग स्कूल खुले हुए हैं। तो इनके भाई ने लोगों को साइकिल चलाना सिखाना शुरू कर दिया। और उस जमाने में कल्पना कीजिए, वो 15 रुपए लेते थे साइकिल चलाना सिखाने के। तो ये है अवसर का फायदा उठाना। अवसर, अपॉर्चुनिटी। एक आदमी साइकिल खरीद रहा है, उसको चलानी नहीं आती, चलो आपको सिखा देते हैं, 15 रुपए लगेंगे। अब थ्रेट्स की बात करें, मतलब ऐसी ऐसी मुसीबतें आई किर्लोस्कर के, लक्ष्मण राव के जीवन काल में, कि अगर वो हिम्मत न करते उनको उनका मुकाबला करने की, तो आज किर्लोस्कर उद्योग खड़ा नहीं होता। बैंक से 10,000 का कर्जा अप्लाई किया, नहीं मिला। नगर प्रशासन से हाउसिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए जगह खाली करने का नोटिस, जहाँ इनकी वर्कशॉप थी। अच्छा, ये मैं पहले बताना भूल गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ किसी को और को प्रमोशन मिल गया था और इनको अच्छा नहीं लगा था वो, तो ये छोड़कर भाई के पास चले गए थे और दोनों भाई मिलकर काम करने लगे थे। वहाँ पर ये बहुत सारे काम करते थे। साइकिल का धंधा जब मंदा पड़ा थोड़ा सा, तो इन्होंने बहुत से नए काम सीखे, जिसका इनको आइडिया उन टेक्निकल जर्नल से मिलता था, उन पत्रिकाओं से मिलता था जिनको वो लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे। और फिर उन्होंने उसकी मेंबरशिप ले ली ताकि वो उनके पास लगातार आती रहती थी। तो उससे आइडिया लेकर वो नए नए प्रोडक्ट बनाते रहते थे। अब संकट तो सबका आता है, लेकिन पुरानी दोस्ती काम आती है। यहाँ देखिए दोस्ती का कितना महत्व है। औंध एक रियासत है महाराष्ट्र में, वहाँ का राजकुमार इनका दोस्त था बचपन का, और वो अब राजा बन गया था पिता की मृत्यु के बाद, और सरकारी काम से बेलगाम आया था। वो अपने दोस्त को मिलने आ गया, और जब उसको इनकी मुसीबत सुनी इन्होंने, तो अपने सहायक से कहा राज्य का नक्शा लाओ। मतलब लक्ष्मणराव किर्लोस्कर और इनके भाई को अपनी फैक्ट्री डिमोलिश करनी थी और इनके पास कोई जगह नहीं थी, कहाँ और जाते। बैंक से लोन नहीं मिला, मतलब काम बिल्कुल बंद करने की नौबत आ गई थी। ऐसी स्थिति में दोस्त आ गया और दोस्त ने कहा कि तुम्हें काम करना है ना, कितनी जमीन चाहिए, ये नक्शा देखो मेरे देश का, मेरे राज्य का, और इसमें निशान लगा दो, इतनी जगह चाहिए, और जो आर्थिक सहायता चाहिए वो भी मैं करूँगा। और वो स्थान आज किर्लोस्कर वाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो भारत का पहला पूर्ण नियोजित औद्योगिक नगर है। आज हम इंडस्ट्रियल टाउन्स की बात करते हैं, नोएडा इज न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन उस समय औद्योगिक नगर की बात नहीं होती थी। तो किर्लोस्कर वाड़ी का जन्म जो हुआ वो लक्ष्मणराव किर्लोस्कर के बलबूते हुआ था। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। यहाँ पर अवसरवादिता, मौका परस्ती, अपॉर्चुनिज्म, ये हम दुर्गुण मान सकते हैं कि साहब फलाना आदमी बहुत मौका परस्त है, अवसरवादी है, अपॉर्चुनिस्ट है। लेकिन मुंबई की सड़क पर साइकिल देखा
तो लक्ष्मण राव को अपॉर्चुनिटी नजर आई और बेलगाम में जन्म हुआ किर्लोस्कर ब्रदर्स का। भाई ने चलाने की ट्रेनिंग दी और 15 रुपए वसूल लिए, अपॉर्चुनिटी। तो ये सब बातें जो हैं सोचनी पड़ती हैं। जमशेदजी टाटा इकलौते संतान थे परिवार, पारसी पुजारी परिवार में, और किसी ने सोचा नहीं था कि वो उद्यमी बनेंगे। लेकिन 1859 में 57 में क्रांति हुई थी और 59 में 30 वर्ष की उम्र में 21,000 रुपए से उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। ट्रेडिंग जो है बिजनेस में एंट्री का एक बहुत सरल तरीका है। मैन्युफैक्चरिंग में आदमी को बाद में जाना चाहिए, वन शुड स्टार्ट विद ट्रेडिंग अगर पॉसिबल हो तो उन्होंने मुंबई के चिंचपोकली इलाके में इसके बाद, ट्रेडिंग के बाद, उस समय कॉटन जो है एक्सपोर्ट होता था और कपड़ा विदेशों से आयात होता था। उनको यह लगा कि देश में कपड़ा हम क्यों नहीं बनाते। उन्होंने एक बंद पड़ी तेल मिल को खरीद लिया चिंचपोकली में, बम्बई में, और वहाँ अलेक्जेंड्रा कॉटन मिल शुरू कर दी। कुछ समय बाद उनको उसकी अच्छी कीमत मिल गई तो उन्होंने उसको बेच दिया और बेचकर फिर इंग्लैंड चले गए। मैनचेस्टर में उन्होंने उद्योग का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत गहराई से अध्ययन किया, डीप स्टडी की, कैसी मशीनरी होनी चाहिए, कैसा काम होना चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर 1874 में उन्होंने 1.5 लाख रुपए की पूंजी से सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की नींव रखी। 3 साल बाद जब फैक्ट्री तैयार हो गई तो उस समय इंग्लैंड की महारानी भारत आ रही थी 1 जनवरी को। उसके स्वागत में उन्होंने मिल का नाम एम्प्रेस मिल कर दिया। एम्प्रेस को प्रभावित करने के लिए ये भी जरूरी होता है, कभी कभी शासक को आप सिर्फ विरोध ही नहीं कर सकते, उसका स्वागत भी करना पड़ता है। अब इस व्यक्ति ने बहुत सारे नोबल काम किए, बड़े ऐसे आदर्शवादी काम किए जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, क्या क्या बेनिफिट मिलने चाहिए वर्कर्स को, कैसी मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, इन सब का उन्होंने अपनी एम्प्रेस मिल में तरीका निकाला, जो बाद में आजकल तो है इंडस्ट्री में, लेकिन उस समय नियम नहीं थे इस तरह के। अब 1880 से 1904 तक 24 वर्ष में उनके 3 बड़े सपने थे। एक स्टील प्लांट लगाना है, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
तो क्या हम ऑक्सीजन को उपभोक्ता के स्थान पर जनरेट कर सकते हैं? अगर वहीं जनरेट कर लेंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगी और उसको सस्ती भी पड़ेगी। उन्होंने ठान तो लिया, बट ही वॉज ओनली ए मैट्रिकुलेट। अब हाई स्कूल व्यक्ति से आप क्या आशा करते हो कि वो क्या इनोवेट करेगा? लेकिन संकल्प इतना मजबूत था कि 22 वर्ष की उम्र में पता नहीं क्या सूझा कि वो मिशिगन कॉलेज ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज में गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि मैं रिक्रूट करना चाहता हूँ। आजकल प्लेसमेंट के लिए लोग इंडस्ट्री को बुलाते हैं कॉलेजों में। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने जाकर ऑफर किया कि मैं किसी को रिक्रूट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। उनसे कहा गया आप छात्रों के सामने अपने विचार रखिए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर चुका एक व्यक्ति फ्रैंक पब्लिस, जिसको फ्रांस में शेल कंपनी में नौकरी मिल चुकी थी, अपॉइंटमेंट लेटर था उसके पास, वो पार्कर पूल के साथ चलने को तैयार हो गया। मतलब क्या प्रतिभा थी उस व्यक्ति में कि 22 वर्ष की उम्र में बिना किसी टेक्निकल बैकग्राउंड के वो एक विचार रखता है जाकर स्टूडेंट्स के सामने, और एक स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट एमएस केमिकल इंजीनियरिंग में फ्रैंक पब्लिस उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उसके बाद तो फिर कहानी है। 1 साल की तपस्या की उन्होंने अपने गैरेज में और 100 क्यूबिक फीट पर आवर कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेटर बना लिया। फिर वो कंपनी आज कहाँ से कहाँ पहुंची। इतना ही नहीं, जब इनकी पत्नी बीमार हुई, इनको लगा मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है। इन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण किया। बाद में वो पत्नी के नाम पर ही उसको समर्पित कर दिया, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है आज हजारों लाखों को सेवा कर रहा है। तो जो सपना उनका डॉक्टर बनने का था कि मैं डॉक्टर बन के लोगों को मदद करूं, वो सपना भी उनका पूरा हो गया कि बिना डॉक्टर बने हुए उन्होंने डॉक्टरी एरिया में, मेडिकल की फील्ड में कितना बड़ा योगदान कर दिया। तो ये एक व्यक्ति मैट्रिकुलेट, हाई स्कूल पास भी ये काम कर सकता है, ये सोचने की बात है, ऐसा संभव है। तो ये सब प्रेरणा मिलती है हमको। अब हम बात करते हैं लार्सन और टूब्रो, 2 दोस्त डेनमार्क में स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। 7वीं कक्षा में इन्होंने भारत के बारे में पढ़ा और आपस में बात की, यार कभी मौका लगा तो चलेंगे, विल सी इंडिया। ओके। तो सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो सिविल इंजीनियरिंग करके एक सीमेंट फैक्ट्री में इक्विपमेंट एरेक्शन कमीशनिंग के लिए आया। सीमेंट फैक्ट्री में एरेक्शन कमीशनिंग काम देखने आया। और हेनिंग हॉलक लार्सन केमिकल इंजीनियर था और वो सीमेंट कंपनियों का विलय करवाने के लिए आया। ये भी एक कहानी है। 1934 में 10 छोटी छोटी सीमेंट कंपनियां थी जो 4 बड़े उद्यमी घरानों को बिलोंग करती थी। उन्होंने ये सोचा कि छोटी छोटी कंपनियों का भविष्य नहीं है, इसलिए इनको मिलाकर हम एक कंपनी बना दें अगर, तो शायद ये अच्छा होगा। तो 10 कंपनियों को मिलाकर एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज का निर्माण हुआ, जिसको हम सभी जानते हैं एसीसी इज ए बिग नेम। और इसको सीमेंट कंपनियों का मर्जर करवाने के लिए, क्योंकि मर्जर भी एक तरीका होता है, उसके लिए एक कंसल्टेंट के रूप में हेनिंग हॉलक लार्सन आया था। अब क्या हुआ, 1938 में विश्व युद्ध शुरू हो गया। डेनमार्क पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। टूब्रो जो था, सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो, उसने डेनमार्क से डेयरी इक्विपमेंट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि डेनमार्क में डेयरी इक्विपमेंट बहुत अच्छा बनता है स्टेनलेस स्टील का। लेकिन उस पर भी रोक लग गई। फिर उसने लोकल वर्कशॉप में उसका फैब्रिकेशन शुरू कर दिया और एक छोटी सी कंपनी बनाकर इन्होंने मुंबई में अपना ऑफिस खोला। और वो ऑफिस इतना बड़ा था, उसमें एक समय में एक ही व्यक्ति बैठ सकता था।
अभी लिमिटेशन थी, आज देखिए लार्सन एंड टुब्रो कितना बड़ा साम्राज्य है। इसी तरह से रॉबर्ट बॉश, आजकल आपको बॉश नाम कई जगह मिल जाएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। जर्मनी में 1861 में जन्मे बॉश ने टेक्नीशियन की ट्रेनिंग लेकर, ही वॉज नॉट ए इंजीनियर और कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं था, टेक्नीशियन की ट्रेनिंग लेकर कुछ दिन अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी में नौकरी की और फिर 2 सहयोगियों के साथ किराए की जगह लेकर सिर्फ 10,000 लोकल करेंसी में, स्थानीय मुद्रा मार्क में 1886 में वर्कशॉप स्थापित की, जहां वे टेलीफोन के पुर्जे और इलेक्ट्रिक बेल बनाते थे। ऐसी कहानी सीमेंस की भी है, गोल्ड पंप्स की भी है, टेस्ला कार कंपनी की भी है, क्विक हिल भारतीय कंपनी है। पूना में 1993 में, आज से ज़्यादा दिन पहले नहीं, एक स्कूल ड्रॉप आउट ने काम शुरू किया रेडियो रिपेयर का। स्कूल ड्रॉप आउट, आगे नहीं पढ़ सका, स्कूल छूट गया, स्किल सीख ली, स्किल ट्रेनिंग लेकर रेडियो रिपेयर करने शुरू कर दिए, फिर कैलकुलेटर रिपेयर किए, फिर कंप्यूटर रिपेयर में आ गया। धीरे धीरे देखिए डाइवर्सिफिकेशन, समय के हिसाब से आगे बढ़ना। और आज हर लैपटॉप में, कंप्यूटर में आपको साइबर सुरक्षा के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, और क्विक हिल एक बड़ा नाम बन गया, जिसके आज विदेशों में भी शाखाएं हैं। तो इसको स्थापित करने वाला कौन है? एक स्कूल ड्रॉप आउट। ऐसी कहानी थीसेनक्रफ्ट की भी है, जर्मनी की। अब रिसाइकलिंग की बात होती है, रद्दी कागज से लघु उद्योग बन सकता है, तो उदाहरण है दिल्ली सरकार के आईटीओ सचिवालय में देखा जा सकता है। आईटीओ के पास दिल्ली गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट है, वहां पर ऑफिस की सारी रद्दी ऑफिस के पिछवाड़े भेज देते हैं, और वहां पर एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है जो उसको कन्वर्ट करके आपको फाइल कवर वाला शीट बना देता है, और फिर उसको वो किसी प्रिंटर को देकर फाइलें बनवा लेते हैं, और वही फाइलें वहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट आजकल कहीं पर भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का माध्यम बन सकते हैं। इग्नू की भी कहीं पर स्थापित कर सकता है अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। यहाँ पर कोऑपरेटिव बनाना, कच्चे माल, रॉ मटेरियल की उपलब्धता स्टडी करना, भाई कैसे प्राप्त करेंगे उसको, उसकी क्या लागत आएगी, उपकरण विक्रेता कौन है, मार्केट की जानकारी की कौन खरीदार होगा और किस कीमत पर उत्पाद बिकेगा, कितनी बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कितनी जगह चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, बैंक से ऋण प्राप्त करना, ये सब एक उद्यमी को जानना जरूरी है। और इसके लिए अगर एक छोटा प्लांट इस तरह का सेटअप कर लिया जाए तो वो ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर बन सकता है। उदाहरण के लिए मैंने पहले जिक्र किया था स्विमिंग का। अगर मुसीबत आ जाए तो आप लास्ट मिनट पर स्विमिंग नहीं सीख सकते, स्विमिंग हर एक को आनी चाहिए। इसी तरह से उद्यमिता की ट्रेनिंग हर एक को लेनी चाहिए, और ये एक स्विमिंग पूल का काम करेगा। जो ट्रेनिंग सेंटर अगर बन जाता है इस तरह का रिसाइकलिंग के लिए, क्योंकि रद्दी पेपर हर जगह बहुत है और रिसाइकलिंग करने के बाद में उसकी खपत भी बहुत है और ये कभी कम नहीं होगी, तो ये एक आपका स्विमिंग पूल का काम करेगा, यहाँ पर हम उद्यमी बनने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, किंतु उच्च शिक्षा हो तो विस्तार में उद्योग को समझने में आसानी होती है और आगे बढ़ने में लाभ होता है। अब और क्या हो सकता है? यस, वेलनेस उद्योग। अब आपने देखा कि महामारी के दौरान, बीमारी के समय स्वास्थ्य की चिंता बहुत बढ़ गई है। इसमें बहुत सारे काम आपके लिए उद्यम बन सकते हैं। और आप कल्पना कीजिए कि 2030 में एक व्यक्ति का अपना दिन कैसे शुरू होगा, दिनचर्या कैसे शुरू होगी। वो जब सो के उठेगा तो या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन योगा और मेडिटेशन की क्लास अटेंड करेगा, और जब शाम होगी
तो एक वियरेबल डिवाइस जो आजकल बहुत कॉमन होती जा रही हैं, हम लोग अपनी कलाई में पहन लेते हैं चीज़ों को, तो उसको वो कहेगी कि माय डियर यू नीड टू क्वाइटन योर माइंड नाउ, भैया अब आप अपना कार्य बंद करो, शाम हो गई है, आपको अपने दिमाग को आराम देना है। तो वेलनेस का एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो कैसे हो सकता है, हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन, अपीयरेंस, स्लीप, माइंडफुलनेस, बहुत स्कोप है। दूसरा, लॉन केयर सर्विस, बहुत अच्छा काम है। वाटर हार्वेस्टिंग भी हो सकता है, वनीकरण का, एफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, लैंडस्केपिंग भी हो सकता है। आज सरकार लाखों पेड़ लगाती है लेकिन आधे भी बचते नहीं हैं। अगर ये कंपनी बन जाए कोई, तो दे कैन डू द टोटल सर्विस। इसमें बहुत काम हो सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस सेपरेटली अबाउट इट एज ए सेपरेट क्लास कि हम क्या काम कर सकते हैं। फूड ट्रक might sound like a wild idea, but the industry is growing. इसमें क्या है कि एक रेस्टोरेंट के मुकाबले में ओवरहेड्स और उसके रख रखाव की कीमत, खर्चा बहुत कम आता है और आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है मोबिलिटी का, कि आप कहीं भी पहुंच सकते हो। किसी बाजार में, किसी हाउसिंग सोसाइटी में आप कहीं भी पहुंच जाओ तो आपको मौका मिलता है कि आप कस्टमर के डोर पे पहुंच जाते हो। अब ये एक महिला है चंडीगढ़ की, बहुत हैप्पी लाइफ थी उसकी, बट एक शिकवा था, एक शिकायत थी, रिग्रेट था कि मेरी पर्सनल इनकम कोई नहीं हुई। लेकिन इसको घर में मिठाइयाँ, पकवान, शरबत वगैरह बनाने का बहुत शौक रहा अपने तरुणाई में, यंग एज में। तो ये इसने बेसन की बर्फी बनानी शुरू की और इसकी पोती, ग्रैंड डॉटर और परिवार के और लोगों ने इसकी मदद की एंड इट हैज बिकम ए ब्रांड। आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं इसको कि नाउ बेसन की बर्फी और रिलेटेड आइटम्स में इट इज़ ए बिग ब्रांड एंड व्हेन शी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 94, सपोर्टेड बाई ग्रैंड डॉटर एंड फैमिली। आपने गन्ने का जूस की बहुत सारी मशीनें देखी होंगी। ये लेफ्ट में दो नमूने हैं जो स्टैंडर्ड हमारे सड़कों पे घूमते हुए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप मन करे भी तो आप जूस पीने में घबराते हो, मक्खियाँ बैठती हैं। बर्फ जो इस्तेमाल होती है वो कितनी साफ सुथरी है, नोबडी नोज। और जो ये इसका चक्का चलता है, इंजन चलता है, डीजल चलता है, तो ग्रीस की भी कुछ स्मेल उसमें आ सकती है जूस में। लेकिन दाईं तरफ ई कार्ड फॉर शुगर केन जूस, ये नोएडा के एक व्यक्ति ने डेवलप की है, जिसमें इसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है और इसका नाम है eekwala.com, ये कंपनी है। तो इसकी ये मशीन जो है कहीं भी आप ले जा सकते हो, कहीं भी खड़ा कर सकते हो। और अगर आपने 2-4 घंटे भी इस पर आपने बिजनेस कर लिया तो गन्ने का जूस पीने वाले लपक पड़ेंगे इसके ऊपर में, क्योंकि इसके अंदर में न तो मक्खियाँ हैं, न ग्रीस की स्मेल है और कूलिंग भी इसकी जो है इंटरनली होती है। इसके अंदर में चिलर है और ये ई रिक्शा पर बनाई हुई मशीन है, पोर्टेबल है। तो इसी तरह से एक आप स्नैक्स के लिए समोसा, गुलाब जामुन वगैरह के लिए रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक मोबाइल यूनिट बना सकते हैं। और एक एग्जाम्पल जो है समोसे का, एक व्यक्ति जो गूगल में सर्विस करता था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स हैंडल करता था, उसको आइडिया आया अगर मैं समोसा बनाऊं, बटन समोसा, तो बहुत चलेगा। बाद में उसने और उसकी माँ ने मिलकर बहुत बढ़िया उनका किचन चलता है, फैमिली किचन, यहाँ पर वो ऑर्डर से लोगों को फूड सप्लाई करते हैं और उसका टर्नओवर 4 करोड़ के आसपास है। तो बातें बहुत हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम कुछ भी करें हमारा लक्ष्य होना चाहिए
अच्छा स्वास्थ्य और प्रसन्नता। पैसे की कल्पना कीजिए, लेकिन पैसे के साथ में अगर स्वास्थ्य नहीं है ठीक, अगर हेल्थ नहीं है अच्छी, तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। So let happiness be your career target in life. Okay, earn money but care for health and happiness. मैं सबको शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोग उद्यमी बनेंगे और मुझे एक दिन मेल करेंगे कि हम उद्यमी बन गए। और किसी को कोई अगर सलाह की जरूरत होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Professor Grover, for that exciting and inspiring talk by describing the entrepreneurial skills of eminent entrepreneurs, identifying areas of entrepreneurship, and giving exciting examples of entrepreneurship. I'm sure our students who are listening in today will be motivated to take up entrepreneurship as a career. This video would be available in the archives of Facebook and YouTube, and students can go and have a look at it at a later date also. We have with us today the faculty members of IGNOU from IGNOU headquarters and regional centers from across India. I would now like to invite them if they have any questions or any comments to give. Would anybody like to comment, please, on the presentation? Any observations, please? Dr. Dorothy from RC Cochin is here. I would like to invite Dr. Dorothy. Thank you, ma'am. And I was listening to sir's lecture. It was interesting, and what sir not only touched the basics, the theoretical foundation, but also gave some case studies which was of interest. I mean, in old age also you can be an entrepreneur starting from the last. And food truck, it was gender inclusive. Generally, when we talk about food truck, we always think about the Mumbai tiffin carrier system. And I always used to have a man in my picture when it comes to food truck. And I was surprised to see sir's slide with gender inclusiveness, I should say. And also gardening lawn, how we related that, how it become not only a economic activity, but also it becomes a wellness activity. That is what. And to start with, how a job is necessary for our livelihood. And he also moved on how what are the restrictions and how we can sail through as a entrepreneur for our day-to-day living. And thank you for this opportunity, and really appreciate the effort of Dr. Sharma and Dr. Mamita Das. And I'm grateful to Grover sir and for this opportunity also. Thank you, ma'am. Professor Grover, would you like to respond? फूड ट्रक की बात की है इन्होंने, इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड। कोई स्पेशल क्वेश्चन तो नहीं था ना मेरे ख्याल से। हियर इज अ क्वेश्चन, प्लीज रिपीट दैट बिकॉज आई एम लिटिल हियरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे को। प्लीज clarify the question, then I will answer. So I didn't have any questions, sir. I only submitted that the lecture was very interesting. Okay. And yes, and how it related to the various aspects of livelihood as an economic activity, and also as an entrepreneur, as a venture. And I was just appreciating that generally food truck for me, this Mumbai tiffin wala only comes to my mind, meaning a man carrying food, is associated with food truck. But Very your good. slide shows gender inclusiveness. That is what I was really shocked to see that. That is what I was sharing. And also how you related that gardening lawn as an economic activity with wellness, that is physical activity. That is what I was sharing. Thank you, sir. I tell you one thing, they
sugarcane juice machine that example I gave is a ready-made project. You buy it today and start your work tomorrow. I mean, a qualified man, if he is hesitant in standing on the machine in the market, he can hire a person, attendant, but it can start giving you revenue from the day one. Okay, clean juice is a big demand, cooled, chilled, and everything in the machine. The machine has a chiller, built-in chiller. So it's a wonderful idea. I mean, don't have to go for a lot of hodgepodge, and cost is also very limited. And from day one you can start earning. And it is in Noida. I think, अगर आप कोई program करें तो you can invite this man to your function to deliver sugarcane juice. Okay. So he is an entrepreneur in Noida. And similarly, the project that I referred to, Delhi Secretariat, waste paper recycling, ऐसा एक प्रोजेक्ट अगर इग्नू अपने कैंपस में कहीं लगा ले और स्टूडेंट्स को बोले ऑपरेट करो, पहले उसको स्टार्ट करो, एस्टेब्लिश करो और ऑपरेट करो, दैट बिकम्स ए स्विमिंग पूल फॉर ट्रेनिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप. It doesn't require much space. But some of you should go and visit Delhi Secretariat and see that facility, what they are doing, how they are doing, who is the supplier. Supplier can be, then you can choose your supplier. I mean, you will not go to the same supplier who has supplied machine to Delhi Secretariat. But question is that अगर आपकी एक कम्युनिटी बनती है, ग्रुप प्रोजेक्ट बनता है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट मान लीजिए अगर कोई करते हैं लोग, तो उसमें let them learn how to make cooperating, how to do survey of raw material availability, कहाँ से इकट्ठा करेंगे वेस्ट पेपर, क्या कॉस्ट आएगी, who will do it, right? फिर पानी कितना चाहिए, ये सब उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है. जो मैन्युफैक्चरर है वो ट्रेनिंग भी देते हैं मशीन चलाने की. They install and train you how to run that apparatus. But question is that अब आपके पास चीज बन जाती है तो आपको सेल करनी है. एंड आई टेल यू वन थिंग, मेरे दिमाग में यूएसए में आई लाइक वन रेस्टोरेंट, मैक्सिकन रेस्टोरेंट वेरी मच. उसमें जब मैं जाता हूँ, उसका नाम है चिपोतले. चिपोतले, आई लाइक देयर डिश एंड व्हेन आई गो I collect their tissue paper. Chipotle. Okay, so fine tissue paper, and it is written on this. This napkin is made with 100% recycled paper. आज जो मैं बात कर रहा हूँ कि फाइल कवर बनाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट वाले. फाइल कवर के अलावा इतना फाइन अगर टिश्यू पेपर बनेगा, दिस कैन गो टू 5-star होटल्स. हमको जो टिश्यू पेपर मिलता है मार्केट में, किसी में तो हाथ में चिपक जाता है, कोई पानी नहीं सोखता. अगर क्वालिटी आइटम बनाए, आई मीन दिस इज एग्जांपल ऑफ चिपोतले. मैं वहां से ले आता हूँ जेब में डाल के 2-4 एक्स्ट्रा जब भी जाता हूँ. तो चांस की बात है, आई केप्ट इट रेडी टू शो. एंड इसके ऊपर प्रिंटेड है, इसके ऊपर प्रिंटेड है, दिस नैपकिन इज मेड विद 100% recycled paper. And I tell you, waste paper USA में बहुत कम मिलता है. वहाँ जो पार्किंग होते हैं लॉट्स, वहाँ छोटी छोटी स्लिप्स मिलती हैं, वहाँ पर बड़ी स्लिप नहीं होती. तो वहाँ भी लोग कलेक्शन करके अगर ये बना रहे हैं उसको, इवन वी कैन कॉन्टेक्ट चिपोतले ऑल्सो, वेयर इज देयर प्लांट, हाउ दे ऑपरेट इट, व्हाट टेक्नोलॉजी दे यूज. It can be a 5-star product for export also, not simply for local use. Such high quality tissue paper बहुत कम मिलता है. Thank you very much. Any other point? Thank you, Professor Grover. Now I would invite
invite any other faculty member who might be having any questions. Are there any questions, please? Or any observations? So it seems there are no any further observations. Now I would request Dr. Sharma to kindly say a few words. Dr. Sharma, please. थैंक यू डॉक्टर मोमिता। ग्रोवर साहब, आपका प्रेजेंटेशन मुझे लग रहा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतना क्लियर और एक्सप्लेनेटरी था कि जरूर उनके दिमाग में कुछ अपना उद्यमी बनने की जो विचार है वो जरूर पैदा होगा। और जैसा आपने कहा कि उद्यमशीलता या उद्यमी बनना केवल यही नहीं है कि अपना कोई सेटअप करना है, स्टार्टअप करना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है। इनफैक्ट अपनी लाइफ का भी एक पार्ट होता है। अगर कहीं इमरजेंसी अगर ज़रूरत पड़ती है देन आपको इधर उधर ना देख करके आप अपना कुछ सोच सकते हैं कुछ करने के लिए। तो आपने जो एक बहुत अच्छा सजेशन और आइडिया दिया सभी स्टूडेंट्स को और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको, दे ऑल शुड बिकम एंटरप्रेन्योर इन देयर लाइफ। whatever entrepreneurial skills are there जो आपने कही है, I think they are very much important for everybody. Whether you want to set up your own enterprise or not, that's a different thing. अगर आपके अंदर उस तरीके का जील है, उस तरीके का पैशन है, डेडिकेशन है, जो आपने कहा कि बहुत सारे जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं इन देयर केसेस, जो संकल्प शक्ति थी वो अगर संकल्प शक्ति है देन आई थिंक दे कैन बिकम, जो आपने एग्जांपल दिए हैं किर्लोस्कर या टाटा ग्रुप्स के या इस तरीके के, दे कैन बिकम ऑफ दैट लेवल ऑल्सो। लेकिन सबसे पहले जरूरी है आपके अंदर में एक उस तरीके की भावना पैदा करना, एक उस तरीके का विचार पैदा आना कि हाँ आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी। और जो एक बहुत जरूरी भी है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, दैट इज टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार द अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वी आर इग्नोरेंट ऑफ देम, पता ही नहीं चलता है कोई अपॉर्चुनिटी है एंड आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो आई थिंक अगर आपके दिमाग में इस तरीके का एक आ रहा है कि आई शुड डू समथिंग, तो जस्ट बी विजिलेंट फॉर द अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। और कई बार अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं देती हैं, वी हैव टू लुक फॉर देम, वी हैव टू सर्च फॉर देम ऑल्सो। पर्टिकुलरली इन द पीरियड ऑफ दिस पैंडेमिक 1.5 years I have seen, and all of us have seen that many of those who lost their jobs because of several reasons, they could find opportunities in the pandemic period also. वहाँ देखा उन्होंने अगर कहीं कहीं खाने की प्रॉब्लम हो रही है तो उन्होंने एक भोजन व्यवस्था का कोई अपना एक सेटअप बनाया है, नाउ दैट इज ग्रोन इनटू अ बिगर थिंग। क्योंकि जो पहले उनके रेस्टोरेंट होते थे, रेस्टोरेंट बंद हो गए, लेकिन दे कुड फाइंड सम अल्टरनेटिव ऑल्सो। तो वो एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखा। आप देख रहे हैं कि सबको मास्क की जरूरत है, सबको सैनिटाइजर्स की जरूरत है, तो सम ऑफ देम दे स्टार्ट There seems to be some network issue here. Amita ma'am is audible. Sharma sir is not audible. Okay, Dr. Jalja. Yeah. Would you like to say something? No, ma'am. You are audible, but Sharma sir's voice is not coming. That's what I was telling. Oh, yeah. Just please bear with us for a moment. Can we close now?
Hello. Sir, as a filler question, can I just post till they set right thing? What are the prerequisites for a beginner to venture into entrepreneurship? For example, having a PAN number, GST number, like that. See, those things you can always get support from a chartered accountant, Okay. right? But as such, there is no prerequisite like qualification or some knowledge. Even people who have not done the course in entrepreneurship can become a good entrepreneur, because earlier in past there was no such course. When people like your Ghanshyam Das Birla and other such people of that time became entrepreneurs. So it's a question of individual interest and creativeness. And GST and other things, even bank formalities, and so many things can be done by the chartered accountants. And does government provide support to new beginners? Pardon? No, does government provide any support for new beginners as entrepreneur? Government has made arrangement for online registration, number one. Then they have a number of schemes for soft finance, no tax for 3 years. I mean, those things are there, but on how to avail them, if one cannot understand the nitty-gritty, he can always take help. Okay? Sir is back. Right. Thank you, sir. Welcome. I'm sorry, my internet connection got disconnected. And just I was mentioning and thanking Professor Grover that you have very well explained the concept of entrepreneurship and the SWOT components, और उसमें से भी आपने जो अपॉर्चुनिटी का जो एस्पेक्ट बताया है कि फॉर टू बी एन एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई वाज जस्ट मेंशनिंग कि जब हम पैंडेमिक की बात कर रहे थे तो मैनी ऑफ द पीपल दे लॉस्ट देयर जॉब्स and but they had that kind of mindset, entrepreneurial mindset, and then they started some alternative things. बहुत सारे अभी हम देख रहे हैं कि people are looking for masks and sanitizers and other kind of safety things. So people have started that kind of initiatives, और वो बहुत successful हैं and they are very much earning from those. And accordingly, mask manufacturing, that has become a very important aspect. People started making masks at their homes also, even the housewives they did. So आपका जो आपने इस तरीके का मोटिवेट किया है, इंस्पायरिंग केस स्टडीज स्टोरीज दैट यू हैव मेंशन, मे बी ऑफ जमशेदजी टाटा और किर्लोस्कर, कि किस तरीके से वो किर्लोस्कर साइकिल से लेकर के आज दे हैव बिकम ए वेरी बिग नेम इन दिस. तो basic thing is we all should be entrepreneur. Whether we want to set up our enterprise or not, that's a different thing, but entrepreneurial mindset, that is very much important. And if you are having that kind of mindset, that will help in our day-to-day other things also. Even if you are working, then you can look for the opportunities to do something different, and you can guide the students, you can guide the others also. कई बार होता है कि मेरे दिमाग में है कि I don't want to set up enterprise, but if I am having that kind of mindset, I can guide, I can help someone who is having that kind of idea or interest. So I think with that, Dr. Momita, if there is not much discussion or query from our faculty members, so we can thank Professor Grover for sparing time and sharing your rich experience with our students and faculty members. And I hope we will get your such kind of support, cooperation in future also, because we will keep on taking your services, your help in this context. As I mentioned, this is a kind of mission which we have started at IGNOU to make our students aware of the concept of innovation, entrepreneurship, and we expect that some of them one day will be able to set up big enterprise or startup. They will be self-dependent and they will be
job provider instead of job seeker. So with that, I again thank you and all our faculty members and participants. So Dr. Momita, we can now bind up it. Thank you very much, Dr. Sharma. Now we have come to the end of today's session. You are mute, Dr. Momita. Dr. Momita, your voice is not coming. Professor Virendranath Grover. This brings us to the end of today's session. I would like to thank our expert, Professor Virendranath Grover, for sparing his valuable time to deliver his motivating talk. I thank all the directors and heads, regional centers, faculty members and academics of IGNOU for attending today's session. I thank Mr. Rajesh Sharma, head of the Public Information Unit, for providing NCID with the Facebook Live platform and ensuring the smooth conduct of the session with utmost dedication. I thank Dr. O.P. Sharma, Director NCIDE, and my colleagues, Dr. Jyotsna Dikshit and Dr. Sujata Santosh, for their untiring support. I thank Mr. Pawan Kumar for extending his assistance in the smooth conduct of the program. So we have come to the end of today's session. I hope that we meet next week. Till then, namaste. Thank you. Thank you, sir.